such a nice song, inspiring one. Very, very inspiring. कि किसको लग रहा है कि सच में उसके पाँव बादल पर हैं? Anyone feeling that, having that feeling already? Yes, शालिनी is having that. और किसको लग रहा है? कनिका is smiling. सरिता जी का eyes glow कर रहा है. Great. मुझे तो सच में ऐसे ही लगता है कि एकदम बादलों पे पाँव रहे and हम लोग बस उड़ते रहे. What a lovely feeling it is. Lovely. So yes, Ashvika, so are we ready to start with today's chapter? Yeah. So who's gonna read today? I can read. Okay, let's Shalini do the reading today. Okay, so today we are at day 12 and our chapter is Magical People Who Made a Difference. So all those magical people in our life who made a difference, you can see in the picture there is a photo album of I think the child and her parents. These are the magical people. Just 1 second, Ashvika. Before we start today's session, I would request everyone to just close their eyes for 1 minute and remember all those people who have in one way or the other made a difference in their life. जिन्होंने कभी हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है आपके टीचर्स हो सकता है आपके हस्बैंड हो, कोई फ्रेंड हो जिसने कभी आपको कुछ एडवाइस दी हो, जो आपको बहुत हेल्प किया हो, कोई फैमिली पर्सन हो, कोई स्ट्रेंजर हो, एनीवन, कोई भी, जिन जिन लोगों को आप एक बार आंख बंद करके याद करिए, who have really made a remarkable difference in your life. Just for 1 minute and let us say thank you to all of them. Let us begin today's session with that gratitude and then we will take forward what Rhonda has to say in regards with this entire chapter. Let us all collectively do it for just 1 minute. Thank you. Would anyone like to share? कोई भी शेयर करना चाहे, कोई भी किसी की like to share. Yes, Shalini. The moment I closed my eyes, the first person was my mother. She is always there with me every time. She is always giving me positive thoughts every time. Whatever problems I have till today, I've always shared with her my happiness and my problems, everything. And whenever I've had problems, she's always told me to just face that and be positive and move ahead. So the first and foremost thing was with my mother. Second is my happiness. Yeah, he's really very supportive. And third is Anuradha. She is my friend. She was my friend. Her son and my son, they were in the same school. So we used to meet before in school, but then afterwards we could not meet. So we went to this social media council and all West Bengal chapter. So she always inspired me. She is Shalini University or Shalini University. She always does that. And fourth, this magic session, thanks to you all, because actually I can see a difference in you. Thanks a lot. Thank you for sharing. Thank you, Shalini. Yeah. So Ashvika, let us begin today's session. Okay, Yes, so Shalini. Day 12. Magical people who made a difference. Okay, so
So as I was saying before, you can see in this picture, if you zoom a little bit, you can see there's a photo album and there are pictures of people. I think the magic dust is being sprinkled on them, and the person who is remembering these people, he's being really thankful, and maybe he's opening a photo album and reliving his memories with these people, right? So aaj ka practice is basically around the magical people in your life who have made your life positive or better in one or another way, right? At times, our own light goes out. I can't read. Goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert Schweitzer, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. Okay, so at times our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. So kabhi when we feel depressed, when we are feeling sad, or we've like given up on something, or like we don't have hopes or faith in us anymore. So there is this one person in our life. सबके लाइफ में ज़्यादा लोग नहीं, तो at least there is this one person who always rekindle, like who always ignites the spark within you again. जो हमारा वो अंदर का स्पार्क हो जाता है ना, वो उसको वापस लाइट करने में हमारा हेल्प करता है. सो सबके लाइफ में नो वन इज दैट लोनली कि उनके लाइफ में कोई एक भी पर्सन नहीं है. सबके लाइफ में देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन हु इग्नाइट्स द स्पार्क ऑफ यू व्हेन योर स्पार्क गोज डाउन. एंड हमें उस चीज के लिए वी शुड फील डीप ग्रैटिट्यूड, एंड उन लोगों के लिए जो हमारा अंदर का फ्लेम को लाइट करने में हेल्प करते हैं. जब वो बुझ जाता है तो अंदर में हमारा जो कैंडल होता है, जो फ्लेम होता है, दे लाइट इट विदिन अस, दे हेल्प अस, दे गिव अस होप, they bless us so that the flame within us again lights up. So this is a very nice quote which was told by Albert Schweitzer, who was a Nobel Peace Prize winner. Every one of us has received help, support, guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of his can you just keep it a little? I can't see the left part, the margin part. It's cut. It's being cut from the screen. I'll make it small. Now it's fine. Yeah. Everyone of particular भी छोटा बड़ा कर सकती हूँ. हाँ ठीक है. Okay. हाँ वो you can adjust it accordingly. ठीक है. Particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on. And we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. So as I told, every one of us has received help. हमने अभी तक अपने लाइफ में कहीं ना कहीं छोटा सा भी we have received help from someone. हमें किसी ना किसी ने किसी चीज के लिए सपोर्ट किया है या गाइड किया है from other people at particular times in our life. तो कभी कभी हमेशा हम लोग के साथ ऐसा हुआ है अभी तक, like कोई भी एक पॉइंट पे देयर इज नो वन ओवर हियर जिसको किसी भी मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ किसी ने भी अभी तक सपोर्ट नहीं किया या किसी भी छोटे काम में भी हेल्प नहीं किया व्हेन दे नीडेड देम. सो हमारे पास सबके पास एक ऐसा इंसान है जो हमें सही गाइड करता है, जिस पे आप बिलीव कर सकते हो कि हाँ ये हमें कभी गलत दिशा नहीं दिखाएगा, ऑन whom we have full trust. So these people have helped us in some way or the other to make our lives better, right? So sometimes another person alters the course of our lives through encouragement. तो उन लोग अपना थोड़ा सा मेहनत से हमारा पूरा लाइफ ऑल्टर कर देते, पूरा लाइफ चेंज कर देते. कैसे? वो हमें एनकरेज करते हैं, गाइड करते हैं, और जब हमें जरूरत होता है ना तो राइट टाइम पे दे आर ऑलवेज देयर. मतलब ऐसे नहीं कि जब हमारा अच्छा टाइम आता है बस तभी वो वहाँ पे रहते हैं. जब हमें उनका जरूरत पड़ता है, व्हेन वी आर एट आवर बैड टाइम्स, व्हेन आवर बैड डेज आर गोइंग इन आवर लाइफ, वो पर्सन हमेशा हमारे साथ
उस पॉइंट पे रह के, एंड बिकॉज वी ट्रस्ट दैट पर्सन, सो आई एम श्योर कि दैट पर्सन गिव्स राइट एडवाइस टू अस, जो हमें जेन्युइनली काम आता है टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम और टू ओवरकम दोज बैड डेज। और उसके बाद लाइफ गोज ऑन एंड उसके बाद वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या जो बैड डेज था वो कट गया, पर और फिर उसके बाद हम भूल जाते कि इस पर्सन ने हमारा कितना साथ दिया था, कितना जेन्युइनली हमें अच्छे दिशा में गाइड किया था। अगर ये इंसान नहीं होता तो मे बी आज हम उस अच्छे पॉइंट पे नहीं होते जहाँ पे हम आज अभी है। सो वी टेंड टू फॉरगेट दोज पीपल इन आवर लाइफ, हमें उनका जरूरत रहता है एंड दे आर देयर टू हेल्प, पर वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं एंड समटाइम्स हमें रियलाइज भी नहीं होता कि वो पर्सन हमारे साथ खड़ा था। मतलब वो ऐसे वो एकदम भी जताता ही नहीं है, तो हमें एकदम रियलाइज भी नहीं होता कभी कभी कि हाँ ये इंसान हमारे साथ हमारे बुरे टाइम में था, ये मतलब हमारे साथ सही गाइडेंस दे रहा था, हमें एनकरेज कर रहा था अपने लाइफ में। तो समटाइम्स वी इवन फॉरगेट टू रियलाइज द इम्पैक्ट, जो वो छोटा सा काम करके हमारे लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ देते हैं, हम बहुत बार उसे अनदेखा भी कर देते हैं, हम रियलाइज ही नहीं करते कि उनके वजह से आज हमारा फ्यूचर इतना अच्छा हुआ है। बट व्हेन यू लुक बैक, अभी हम जब ये चीज रियलाइज कर रहे हैं, हमें जब ये चीज का पता चल रहा है, सो नाउ व्हेन यू लुक बैक एट योर लाइफ, आप अपने पास्ट में देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन कौन था, और आपको रियलाइज होगा कि पाइवटल मतलब वो कितना इम्पोर्टेंट था आपका लाइफ को मैजिकली चेंज करने में और आपको सही डायरेक्शन दिखाने में, ताकि आपका लाइफ बेटर हो पाए। सो यू डोंट इवन नो, पर अगर आप अभी अपना पहले का मुश्किल टाइम को याद करोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि वो कौन कौन पर्सन थे जो आपके साथ आपके बुरे टाइम में थे, नॉट ओनली इन गुड टाइम्स टू सेलिब्रेट योर सक्सेस, बट ऑल्सो देयर इन योर बैड टाइम्स टू सपोर्ट यू एंड गाइड यू टू दैट सक्सेस, राइट? The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know, and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you. ओके, सो ये इंसान कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हमारा पेरेंट ही हो, पेरेंट्स सपोर्ट अस, पर उससे भी ज्यादा ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई टीचर या कोई कोच, अंकल, आंट, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट, कोई भी फैमिली मेंबर, कोई भी फ्रेंड, आपका कोई भी स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, कोई स्पोर्ट्स का कोच, कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके लाइफ को मैजिकल बनाने में आपका हेल्प कर सकता है। इट्स नॉट ओनली फैमिली, या इट्स नॉट ओनली योर फ्रेंड्स और नॉट ओनली योर parents, but कोई भी हो सकता है। There is no restriction banner in this. They may have been the person who introduced you to your current partner or to your particular interest that became one of your greatest passion. तो ऐसा हो सकता है कि जब आप छोटे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपका एक्चुअली इंटरेस्ट क्या है, पर आपके जो कोच है, आपके जो टीचर है, अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, मे बी दीज पीपल ऑल्सो मेड यू रियलाइज कि आप किस चीज को करने में केपेबल हो, क्योंकि बचपन में तो हमें इतना नॉलेज रहता नहीं अबाउट वेरियस थिंग्स, उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है। तो वो कोई टीचर या कोच या कोई भी आपका फ्रेंड भी हो सकता है, या आपका कोई बड़ा भाई बहन भी हो सकता है who is more experienced than you, जिसने आपको बोला कि या दिस इज योर केपेबिलिटी एंड ही एक्चुअली सपोर्टेड यू, वो आपको एनकरेज करता था टू डू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, ताकि उस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा हो, पर आगे जाके आप उसमें जब अच्छा करने लग जाओगे तब आपको समझ आएगा कि या दिस इज द राइट थिंग फॉर मी, राइट? मे बी दे वर समवन हु यू डिडंट इवन नो, आपको मे बी पता भी नहीं होगा, वो अनकॉन्शियसली आपको बस गाइड कर रहा था और आपको अच्छा लग रहा था वो चीज, तो आप करते जा रहे थे, आपको रियलाइज भी नहीं हुआ होगा कि वो एक्चुअली आपका कितना बड़ा हेल्प कर रहा था लाइफ में। एंड दे अपीयर्ड इन योर लाइफ वेरी ब्रीफली, परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट टच्ड यू टू द कोर। तो आपको रियलाइज भी नहीं हुआ होगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो 15-20 साल से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ है। हो सकता है एक दिन में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया हो या फिर कुछ ऐसा आपको बोल दिया हो जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट
इम्पैक्ट पड़ा आपके लाइफ पे, उन्होंने जो एक्शन किया उसका जो रिएक्शन था वो बहुत अच्छा था आपके लाइफ में। तो अगर वो इतना शॉर्ट टर्म के लिए होगा ना, तो अगर लंबे समय के होगा तो फिर भी आपको रियलाइज हो सकता है कि हाँ, ये इंसान मेरे साथ इतने टाइम से खड़ा है। पर ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आपको अननोइंगली एकदम छोटे टाइम के लिए ऐसा कुछ बोल जाते हैं या ऐसा कुछ कर जाते हैं अपनी लाइफ में जिससे आप एकदम टच हो जाते हो, पर फिर भी आपको रियलाइज नहीं होता है कि ये इंसान मेरे लिए इस फील्ड में इतना अच्छा करके चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। So this is the example that we'll read ahead. Yeah. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer. And my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. So this is a person जिसकी ग्रैंडमदर को बुक्स पढ़ना, कुक करना और कंट्री साइड में रहना या जाना बहुत अच्छा लगता था। तो वो ग्रैंडमदर क्या करती थी, शी यूज्ड टू जस्ट शेयर हर फीलिंग्स। वो अपना इंटरेस्ट, वो जिस चीज से प्यार करती थी वो बस अपनी ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन को उस चीज के बारे में बताती थी और कैसे वो चीजें उनके लाइफ में उनको हेल्प करते थे। तो ये चीज सुनते सुनते ना उस इंसान को पता भी नहीं चला कि कब कुकिंग उनका पैशन बन गया। एंड 20 इयर्स तक वो उनका पैशन रहा। एंड इवेंचुअली धीरे धीरे करके, पहले में भी उनको कुकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट था और उनकी ग्रैंडमदर का शेयरिंग करने से उनका इंटरेस्ट पैशन में बदल गया और धीरे धीरे करके उनको बुक्स में भी इंटरेस्ट आ गया और वो राइटर बन गए। और कंट्री साइड से भी वो इतना इन्फ्लुएंस हो गए, इतना प्यार करने लग गए कि वो अब वहीं पे रहते हैं अपना लाइफ में, right? So this is why sharing is very important. This is why before the session and after the session we tell you कि you should share, कि आप भले आपके लिए वो शेयरिंग बहुत छोटा सा होगा पर मे बी वो दूसरे के लाइफ में, यहाँ पे जितने लोग हैं हम साथ में, तो मे बी वो शेयरिंग किसी दूसरे के लाइफ में इफेक्ट हो जाए। जैसे कल शिवांगी मैम ने शेयर किया था वो मैजिक डस्ट और वो खाना वाला एग्जाम्पल, तो मे बी बहुत लोगों को उस पर अभी तक बिलीव नहीं हो रहा होगा, पर वो उनका शेयरिंग, उनका लाइव एग्जाम्पल सुनेंगे तो मे बी अब उनको उस चीज पे और बिलीव हो गया होगा। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेल यू टू शेयर, क्योंकि शेयर करने से ना दूसरे इंसान को लगता है कि हाँ ये चीज तो कितना इंटरेस्टिंग है, अगर इसके साथ इतना अच्छा हो सकता है, इसको इस चीज से प्यार हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है। तो हम जो भी सीख रहे हैं या फिर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा है जो आप चाहते हो कि आप सब लोग से शेयर करो और आपको लगता है जेन्युइनली कि वो दूसरे लोगों के लाइफ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, सो प्लीज फील फ्री टू शेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस सेशन। वी आर डूइंग दिस सेशन ताकि हम एक दूसरे को साथ में लेके चल पाए। वी आर नॉट जस्ट, ये कोई स्कूल नहीं है कि हाँ जिसका होमवर्क बेस्ट होगा उसको भी प्राइज मिलेगा। वी वॉन्ट कि everyone is best in their practices that they are doing in this session. So please share and listen to others also carefully while they are sharing their experience or thoughts. My grandmother also disciplined me with the steel hands to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. So her grandmom was also very disciplined. तो उन्होंने क्या किया था, she gave her a steel hand to say thank you. ठीक है, तो at the time I thought she was teaching me to be polite. तो उस टाइम पे उनको इतना समझ नहीं था, मे बी she was young, तो उनको लग रहा था कि मे बी the grandmother is giving that steel hand to her to teach her how to be polite and how to be humble to others, right? पर बाद में जाके उनको रियलाइज हुआ, बाद में जाके she understood कि the teaching, the grandmother taught her these magical words and that was the greatest gift grandmother gave her, राइट? तो मे बी उनकी ग्रैंडमदर ने उनको और भी कुछ गिफ्ट एंड ऑल दिया होगा, पर बाद में जाके व्हेन शी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग एंड व्हेन शी जेन्युइनली गॉट टू नो कि वो चीज किस चीज के लिए था, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड गिविंग दैट स्टील हैंड,
So that time she became so grateful. So that's why we are doing this chapter today, so that you can go back in your past and you can remember ki who were the people who gave you something or gave you an advice or supported you at a particular time, जिसका आपको उस टाइम पे मे बी रियलाइज नहीं होगा, तो अभी रियलाइज हो रहा है. इट्स नेवर टू लेट टू थैंक एनीवन और डू समथिंग गुड फॉर योरसेल्फ और फॉर एनीवन. इट्स नेवर टू लेट. आप कितने भी यंग हो, आप कितने भी बुढ़े हो, इट डजंट मैटर. मैटर है कि आपको एटलीस्ट रियलाइज हुआ अपने लाइफ में उस इंसान का इंपॉर्टेंस. किसी भी एज पे हुआ, दैट इज नॉट अ फैक्टर. मेन फैक्टर इज आपको रियलाइज करवाना उन लोगों के बारे में. और अभी उनकी ग्रैंड मॉम नहीं है, तो बट स्टिल शी इज सो थैंकफुल टू हर ग्रैंड मदर फॉर द टीचिंग्स दैट शी गेव हर व्हेन शी वाज अलाइव. एंड अभी उनको पता चल रहा है कि वो छोटे छोटे टीचिंग्स का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ उनके लाइफ पे. मे बी शी इज वेरी हैप्पी इन दैट कंट्री साइड, और मे बी इफ शी लिव्ड इन द सिटी वो इतनी हैप्पी नहीं होती जितना हैप्पी वो कंट्री साइड पे रह के हो रही है, राइट? So she's understanding the influence of those small teachings right now. So she still continues to thank her grandma, even though she's not there to teach her anything more. पर जितना उनको already मिल चुका है अपनी grandmom से, she still thank those things. So that's why we say कि अगर आपके पास्ट में भी कुछ हो चुका है ना, और आपको अभी रियलाइज हो रहा है कि that thing was very nice and you should have thanked that person or that thing at that time, तो आप it's never too late. आप अभी भी उस चीज को याद करके thank कर सकते हो. Yeah. Today you're going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. Okay. So आज का प्रैक्टिस हमारा क्या है? आज का भी बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है. आज आपको क्या करना है? आपको एक शांति वाले जगह पे बैठना है, जस्ट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. यू कैन ईदर लॉक योर डोर इफ यू डोंट हैव such a peaceful place in your house. You can lock your door and you can just sit for some time and tell your kids and your family members to not disturb you. और आपको क्या करना है? आपको 3 लोगों के बारे में, 3 मैजिकल लोगों के बारे में सोचना है. इट मे बी फ्रॉम योर पास्ट. वो अभी इस दुनिया में हो भी नहीं सकते हैं, वो भी हो सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि अभी जो है आपको उनको ही करना है. अगर वो आपके लाइफ में कभी थे और उन्होंने कभी आपके लाइफ को इम्पैक्ट किया है, पर वो अभी आपके लाइफ में नहीं है, यू कैन थैंक देम ऑल्सो. तो आपको एक क्वाइट प्लेस पे जाके बैठना है और 3 मैजिकल लोगों के बारे में याद करना है जिन्होंने आपके लाइफ में कोई डिफरेंस बनाया है, कोई इम्पैक्ट दिया है, कोई एडवाइस दिया है जो आपको सही में काम आया है. एंड एक बार आप इन 3 लोगों को याद कर लोगे ना, तो अपने दिमाग में ले आओगे कि वो 3 लोग कौन है. फिर आपको एक एक इंसान के साथ एक टाइम पे वर्क करना है. और आपको क्या करना है? आपको उस इंसान से बात करना है अलाउड, एज यू दो दे वर प्रेजेंट. तो आपको ऐसे उनसे बात करना है कि अभी वो आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है? और उन्हें बताना है, आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि वो इंसान अभी आपके सामने चेयर पे या बेड पे बैठा हुआ है, और आपको उनको थैंक यू बोलना है. और उनको फेस टू फेस आपको सही में इमेजिन करना है कि वो सामने है और आप उनको फेस टू फेस बता रहे हो कि आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हो, एंड उन्होंने आपके लाइफ में कब और कैसे आपका हेल्प किया है, या कब और कैसे आपके लाइफ को इम्पैक्ट किया है. ऑलराइट. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इमेजिन सबसे पहले आपको इमेजिन करना है कि वो फेस टू फेस बैठे हैं. आप उनको मेंटली विजुअलाइज करके या लिख के नहीं कर सकते हो ये प्रैक्टिस. आपको जेन्युइनली इमेजिन करना होगा, आपको फील करना होगा कि वो पर्सन अभी आपके पास बैठा है और आपको फेस टू फेस उन्हें बताना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो उस इंसान के लिए अपने लाइफ में, या फिर क्यों ग्रेटफुल थे आप. अगर वो अभी आपसे टच में नहीं है तो आप ये भी बोल सकते हो कि वो आप क्यों ग्रेटफुल थे, वो पास्ट में आपके साथ थे जब, तो आप उस इंसान के लिए क्यों ग्रेटफुल हो उस टाइम के लिए, और उन्होंने आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट किया है. भले एक दिन के लिए उन्होंने आपके लाइफ में खुशी लाया है, आप उस इंसान को भी कर सकते हो. इट्स नॉट दैट 10-15 साल तक इंसान आपके लाइफ को इम्पैक्ट करेगा उसी को थैंक यू बोल सकते हो. अगर किसी इंसान ने एक दिन में भी आपका लाइफ थोड़ा भी चेंज किया है तो आप उसको भी थैंक यू बोल सकते हो और रीजन बता सकते हो कि वाई यू आर ग्रेटफुल टू देम. ऑलराइट.
Make sure you do this magical practice with all 3 people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. तो ये तीनों लोगों के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको तीनों को एक एक करके करना है, पर एक ही टाइम पे करना है। ऐसा नहीं आप एक को सुबह कर रहे हो, एक को दिन में, एक को रात में, फिर आप में वो ग्रैटिट्यूड का फीलिंग नहीं आएगा, फिर आपका वो मैजिकल प्रैक्टिस सक्सेस नहीं हो पाएगा। आपको एक ही सेशन में बैठना है, एक ही बार पूरे दिन में बैठना है, और इन 3 लोगों के बारे में एक एक करके आपको याद करना है। ना ही 3 लोगों को साथ में करना है, और ना ही 3 लोगों को अलग अलग टाइम पे, अलग अलग एक दिन में अलग अलग टाइम पे करना है। एक टाइम पे करना है, पर एक के बाद एक करना है, ठीक है। और अगर आप ये मैजिकल प्रैक्टिस स्प्लिट कर देते हो ना, जैसे एक को सुबह करते हो, एक को शाम को करते हो, तो क्या होगा, आपको वो ग्रैटिट्यूड का फीलिंग 10 बार नहीं आ सकता है। एकदम जो डीप ग्रैटिट्यूड का फीलिंग होता है ना, वो एक ही बार आ सकता है, राइट। तो आपको वो ग्रैटिट्यूड जिस भी टाइम पे डे में आपको लगे कि हाँ अभी आपका माइंड एकदम रिलैक्स्ड है, अभी आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग हो रहा है, तो उस टाइम पे आप बैठो, क्योंकि उसी टाइम पे आपको सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील हो पाएगा। जिस टाइम पे आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटेड हो, उस टाइम पे आप एज अ ड्यूटी कर दोगे, आप उतना फील नहीं कर पाओगे। तो कभी भी रात में, सुबह, दिन में, कभी भी आपको पॉजिटिव फीलिंग हो और बहुत एनर्जेटिक फीलिंग हो और आपका माइंड एकदम शांत हो, उस टाइम पे आप बैठ के ये प्रैक्टिस करना। वरना अगर आप एकदम ऐसे ड्यूटी के जैसे करोगे और बिना फीलिंग के करोगे ग्रैटिट्यूड का, तो आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो 2 चीज आपको अश्विका, ये ग्रैटिट्यूड का फीलिंग कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस ग्रैटिट्यूड ऑल्सो ना, मतलब जरूरी नहीं कि वो हमारे विसिनिटी में हो या हमारे आसपास हो ना, लॉन्ग किसी कोई दूर जो रहता है उनको भी कर सकते हैं ना। या यू कैन डू इट लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्सो, पर आपको इमेजिन करना है कि अभी वो इंसान आपके सामने बैठा है, ठीक है। और आपको 2 चीज याद रखना है कि आपको स्प्लिट नहीं करना है प्रैक्टिस, और जब भी आपको अच्छा फील हो, पॉजिटिव फील हो, तभी आपको ये प्रैक्टिस करना है। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आप कैसे कर सकते हो। Here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream, and I couldn't be happier. All because of you, of what you said to me that day. Thank you, Sarah. So this is an example. Sarah, this is the person who is thanking Sarah, that he wants to thank Sarah for the time that she encouraged him to follow his heart. So maybe that person, उस person को उस time समझ नहीं आ रहा होगा, वो confused था कि उसको अपने life के साथ करना क्या है. So Sarah might be a friend or a sibling or anyone who encouraged that person कि जो तुम्हारा दिल बोलता है ना, तुम वही करो. So, and I was lost and confused that day, and your words touched and lifted me out of despair. तो वो इंसान उस दिन बहुत confused था, बहुत lost था, और उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि उसको अपने लाइफ के साथ क्या करना है. पर जब सारा ने उसे बोला ना कि follow your heart and do whatever your heart says, तो उस इंसान को सही में समझ आया कि उसको अपने लाइफ के साथ क्या करना है, और वो जो डिस्पेयर में था, वो जो सैडनेस था ना उसका, वो हट गया और वो बहुत लिफ्ट अप हो गया, क्योंकि जो थोड़े वर्ड सारा ने उसे बोले थे वो उसके एकदम दिल पे जाके लगा. इट टच्ड हिज हार्ट एंड ही गॉट टू नो, ही टुक हर एडवाइस, एंड बिकॉज ऑफ व्हाट सारा सेड, उसको हिम्मत मिला, ही फाउंड द करेज एंड ही फॉलोड हिज ड्रीम, ही फॉलोड हिज हार्ट. जो उसके हार्ट ने बोला, ही फॉलोड हिज हार्ट, और वो फ्रांस गया एंड ही वर्कड एज एन अप्रेंटिस शेफ, ठीक है. और अभी वो अपना ड्रीम लिव कर रहा है, एंड ही थिंक्स कि वो इससे ज्यादा खुश कभी नहीं हो पाता. ऑलराइट, ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट यू सेड टू मी दैट डे. थैंक यू सारा. तो ये सब क्यों हो पाया? बिकॉज व्हाट सारा टोल्ड हिम, and he at last he thanked Sarah for those magical words that she told him. तो आपको ऐसे करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है. आपको डायरेक्टली 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करना है. तो जैसे आपको इमेजिन करना है कि आपकी एक फ्रेंड या कोई भी जो है वो आपके सामने बैठी है, और आप उसको थैंक यू कर रहे हो फॉर दैट टाइम व्हेन शी एनकरेज्ड यू और सपोर्टेड यू और गेव यू एडवाइस. और क्या एडवाइस दिया उन्होंने आपको, तो आपको पहले वो बताना, पहले इंसान को इमेजिन कर लोगे,
उसके बाद आपको उस टाइम को याद करना है जब वो आपके लिए था, व्हेन शी और ही सपोर्टेड यू। उसके बाद आपको बोलना है कि आप उस टाइम पे क्यों सैड थे और उन्होंने आपको ऐसा क्या बोला या ऐसा क्या किया आपके लिए जो आपको अच्छा लगा और सही में बाद में उस चीज से आपको सक्सेस मिला, और अभी आप कहाँ हो, आपने उनका एडवाइस लिया कि नहीं लिया। और इफ यू आर थैंकफुल टू दैट पर्सन, तो आपको बोलना है कि ऑल दैट इज बिकॉज नाउ इज बिकॉज ऑफ व्हाट यू सेड टू मी दैट डे, एंड थैंक यू, जो भी उस पर्सन का नाम है। ठीक है? It's very important that you say the reasons why you're grateful. And you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से द रीजंस कि आप क्यों ग्रेटफुल हो। रीजंस बोलना कि जिस आप बस थैंक यू बोल दोगे, सो इट्स नॉट ओके। ठीक है? आपको रीजंस बताना होगा उस पर्सन को कि आप उस पर्सन को क्यों थैंक यू बोल रहे हो। अगर मैं आप में से किसी को बोलूं थैंक यू शालिनी आंटी, तो मैं क्यों बोल रही हूँ आपको क्या पता चलेगा। पर इफ आई से यू थैंक यू शालिनी आंटी फॉर रीडिंग टुडे, तो आपको पता चलेगा ना कि मैं आपको थैंक यू क्यों बोल रही हूँ, वरना आपको फील नहीं होगा उस थैंक यू का और आपको पता नहीं चलेगा कि मैं ऐसे ही बोल के चली गई। तो इसीलिए आपको रीजंस बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस इंसान को थैंक यू कर रहे हो। एंड यू कांट से टू मच, आपको बहुत ज्यादा बटर नहीं लगाना है। आपको जो हुआ है आपके लाइफ में आपको वो ही बोलना है बस, और उसी एक चीज के लिए आपको थैंक यू होना है। Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. तो बोलने से ज्यादा आप जितना फीलिंग के साथ करोगे ना, आप बोलो थोड़ा ही, पर जितना ज्यादा आप फीलिंग के साथ करोगे ना, उतना अमेजिंग और उतना जल्दी और उतना ज्यादा मैजिकल रिजल्ट्स आपको दिखेगा। और जब आप मैजिक देखोगे कि आपके लाइफ में वो मैजिक हो रहा है प्रैक्टिस करने से, तो इन नंबर्स अमंग द मोस्ट पावरफुल एक्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड यू कैन परफॉर्म। तो आपका इस लाइक जो काउंट योर ब्लेसिंग्स ये सब है ना, उसमें टाइम लगता है मैजिक दिखने में। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी डन एवरी डे। पर ये सब जो बाकी के प्रैक्टिसेस है, दीज आर सो इंटरेस्टिंग एंड दीज आर यू नो सो कैची कि आप एक दो दिन भी करोगे ना तो भी आपका ये रेगुलर हैबिट टाइप का बन जाएगा। दैट्स व्हाई दीज आर नॉट सेट टू डन एवरी डे, क्योंकि अगर आप एकदम मन से कर रहे हो ना तो ये पक्का से आपका हैबिट बन जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है आपको। और आपको बहुत जल्दी इफेक्ट दिखता है ये सब प्रैक्टिसेस में। तो अगर हमें किसी चीज में इफेक्ट दिखता है, किसी चीज में हम सक्सेस होते हैं, तो हम चाहते हैं ना कि हम उसी फील्ड में आगे बढ़े, हम कुछ और ट्रैक क्यों पकड़ेंगे। तो अगर आपको ये सब चीज का रिजल्ट दिखेगा तो आप ऑब्वियसली इसको कंटिन्यू करोगे, आप इसको छोड़ोगे क्यों फिर। भले ही आप डेली नहीं करो, पर जब भी आपको सपोज रियलाइज हुआ अचानक से, या फिर अगर अभी भी आपको किसी ने सपोर्ट किया या कुछ एडवाइस किया, तो ऑटोमेटिकली ये प्रैक्टिस आपके दिमाग में आ जाएगा। If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. ओके, तो अगर आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप बात कर पाओ, आप बहुत जोर से बोल पाओ, तो आप उनको लिख सकते हो। उस पर्सन को जो भी मैंने पॉइंट्स बताया है, आप वो पॉइंट्स को लिख भी सकते हो, और ऐसे लेटर टाइप में, जैसे हम लेटर लिखते हैं ना, टू माय डियर फ्रेंड साक्षी, तो आप ऐसे लेटर फॉर्मेट में भी लिख के उस इंसान को जिस वाई यू आर ग्रेटफुल और थैंक यू लिखना है, और क्या एडवाइस दिया था, और उस टाइम पे आप किस प्रॉब्लम में गुजर रहे थे या क्या हो रहा था आपकी लाइफ में जिसके कारण उस पर्सन को एडवाइस देना पड़ा। ऑलराइट, तो आप उनको ऐसे एक लेटर फॉर्मेट में भी लिख सकते हो अगर आप बोल नहीं पाओगे तो। ठीक है? When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. ओके, सो जब आपने ये प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड दिस प्रैक्टिस, आपको मे बी रिजल्ट नहीं दिखेगा, पर आपको एक बहुत ह्यूज डिफरेंस दिखेगा इन द वे यू फील अबाउट दैट पर्सन। मे बी अभी आप उससे प्यार करते हो, यू लाइक दैट पर्सन, तो ठीक है, पर जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना वो 3 लोगों के लिए, तो आपको बहुत ह्यूज डिफरेंस दिखेगा इन द वे दैट यू फील फॉर दैट पर्सन।
and the evidence of gratitude's power working is always the first and foremost, it makes you happy. तो सबसे पहला रिजल्ट जब आप कोई भी 28 प्रैक्टिसेस में से जब आप कोई भी प्रैक्टिस करते हो ना ग्रैटिट्यूड का पावर को लेके, और आप एकदम मन से और एकदम अच्छे से फॉलो करके उसका रूल्स को करते हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या रिजल्ट दिखेगा कि आप वो प्रैक्टिस करने के बाद खुश हो रहे हो. अगर आप खुश नहीं हो रहे हो, अगर आपको नॉर्मल लग रहा है या फिर सैड फील हो रहा है, तो इसका मतलब आपने या तो कोई गलती से किया है या आपने फीलिंग के साथ नहीं किया है. ठीक है, अगर आपको खुशी मिल रहा है उस प्रैक्टिस करने के बाद, सो दैट्स अ ग्रेट सक्सेस. आपको रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है पर खुश भी हो रहे हो ना आप उस टाइम पे, सो दैट्स अ ह्यूज सक्सेस, ट्रस्ट मी. एंड जो सेकेंड एविडेंस है ग्रैटिट्यूड के पावर का, वो क्या है कि आप और अच्छे चीजें, मे बी आप किसी से मे बी आपका कोई फ्रेंड है जिसने पहले आपको कोई एडवाइस दिया था अच्छा, और आप उसको याद कर रहे हो, पर अभी आप उससे टच में नहीं हो, तो मे बी आप उससे वापस टच में आ जाओ कैसे कैसे करके. सो यू नो, आफ्टर डूइंग ऑल दीज प्रैक्टिसेस, कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है आज हम पीपल पे प्रैक्टिस करें तो हम पीपल को ही अट्रैक्ट करेंगे. आप अपने लाइफ में और किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को, किसी भी अच्छे सिचुएशन को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, और आप देखोगे कि आपके साथ सारे वंडरफुल चीजें ही हो रही है. मतलब अप डाउन्स तो होंगे पर ज्यादा से ज्यादा वंडरफुल चीजें हो रही है आपके लाइफ में. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also interacts more wonderful things which will make you feel even happier. तो जब आप, एक तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करने के बाद हैप्पी फीलिंग आना चाहिए. ठीक है, और हैप्पी फीलिंग आपको आएगा तो आप वंडरफुल थिंग्स अट्रैक्ट करोगे, और जब आप वंडरफुल थिंग्स अट्रैक्ट करोगे ना, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा कि आपके लाइफ में इतना वंडरफुल थिंग्स हो रहे हैं, आपके लाइफ में अच्छा चीजें आ रही है ज्यादा से ज्यादा. तो आपको अगर अच्छा चीजें आएगा तो आपको उसका भी खुशी होगा. इसका मतलब आपका खुशी डबल हो गया. पहले आपने प्रैक्टिस किया और आपको अच्छा लगा, उसके बाद अच्छा लगने के वजह से आपने और चीजें अच्छी चीजें अट्रैक्ट की, उसकी वजह से आपको और अच्छा लग रहा है, उस अच्छा लगने की वजह से आपने और 10 चीजें अट्रैक्ट की, फिर आपको अच्छा लग रहा है. सो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी भी रुकना नहीं है. अगर आप अच्छे से करो, फीलिंग के साथ करो और हैप्पी हो उसके बाद, तो ये ग्रैटिट्यूड ना, यूनिवर्स आपको कभी अच्छी चीजें देना रोकेगा नहीं. ठीक है, पर जिस दिन आप क्रिटिसाइज करने लग जाओ, नेगेटिविटी ले आओ अपने लाइफ में, नेगेटिव पाथ पे चले जाओ अपने लाइफ में, तो यूनिवर्स एक तो आपको देना भी बंद कर देगा, ऊपर से आपके पास ऑलरेडी जो थोड़ा बहुत अच्छा चीज है उसको भी ले लेगा. क्योंकि उस यूनिवर्स को तो यही लगेगा कि अगर आप खुश नहीं हो अपने लाइफ में, तो ठीक है, इससे सब कुछ लेके किसी और इंसान को देते हैं ना जो खुश है, तो आपसे वो सब चीज भी ले लिया जाएगा. तो खुश होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यही मैजिक है लाइफ का, एंड दैट्स द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो आज हमें सस्पेंस पता चल गया कि मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है क्या. दैट इज टू बी हैप्पी. द मैजिक ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी एंड अट्रैक्ट मोर वंडरफुल थिंग्स. ये दो चीजें आपको याद रखना है, खुश रहो, ग्रेटफुल रहो, और अट्रैक्ट मोर वंडरफुल थिंग्स इन योर लाइफ. Okay. Just a minute. Yeah. Magic practice number 12. Magic people who made a difference. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Find a quiet place alone sometime during today and make a list of, just a minute. Yeah. Make a list of 3 people who made a difference in your life. Work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you're grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Okay, so a quick recap. आज आपको क्या करना है? You have to count your blessings, make a list of 10 blessings and write the reason why you are grateful for those things. And end में आपको thank you लिखना है, और लिखने के बाद आपको अपना वो 10 blessings को वापस read करना है, and you have to feel the gratefulness for those blessings. फिर आज का प्रैक्टिस में आपको क्या करना है? आपको एक क्वाइट जगह ढूंढना है, सम अलोन टाइम, जहाँ पे आपको 3 लोगों का लिस्ट बनाना है जिन्होंने आपकी लाइफ में आपको हेल्प किया है, सपोर्ट किया है या इनकरेज किया है, कुछ भी. एंड आपको उस लिस्ट पे वर्क करना है. आपको
आपको दिन में एक ही बार बैठना है और तीनों इंसान को करना है, पर एक के बाद एक करना है, ठीक है। और क्या बोलना है आपको उस इंसान को कि you have to tell that person कि why are you grateful for that person, और उसने आपके लाइफ में ऐसा क्या किया या आपको क्या एडवाइस दिया जिसने आपके लाइफ को अफेक्ट किया और मैजिकल बनाया। ऑलराइट, तो आपको ये करना है। और आपको क्या याद रखना है, 2 चीज कि आपको एक के बाद एक करना है। ये वाला मैजिकल प्रैक्टिस आपको स्प्लिट नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है एक जन को आप सुबह करो, एक जन को रात में, एक जन को दिन में, ऐसे नहीं, एक ही बार में बैठ के करना है। और दूसरा चीज, अगर आप नहीं बोल पाते हो या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, अगर आप नहीं बोल पा रहे हो उस इंसान को, तो आप उस इंसान को एक लेटर भी लिख सकते हो। कैसे? पहले उसका नाम लिख के एंड फिर रीजन लिख के एंड उसने आपके लाइफ में क्या चेंजेस लाया था, ठीक है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको विजुअलाइज करना है कि वो इंसान आपके सामने बैठा है, आप अभी उस इंसान के साथ फेस टू फेस हो और आपका कॉन्वर्सेशन हो रहा है उस इंसान के साथ फेस टू फेस, ठीक है। और अगर आपको अपने घर में से किसी को करना है ना, तो आप उसको बिठा भी सकते हो अपने सामने, आप उसको फेस टू फेस बोल भी सकते हो। पर अगर कोई है जिससे अभी आप मिलना पॉसिबल नहीं है, तो आपको एकदम अच्छे से विजुअलाइज करना है कि वो इंसान बैठा है और आप चिट चैट कर रहे हो उस इंसान के साथ, ठीक है। और लास्टली, सोने से पहले आपको मैजिक रॉक हाथ में पकड़ के थैंक यू बोलते हुए आपको अपना बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे को याद करना है। So friends, आज का जो एक्सरसाइज है, रोंडा ने तो बुक में लिखा है कि आप विजुलाइज करके आप उनको बोलिए कि you have really made a remarkable difference in my life. I would suggest, if that person is living, just pick up your phone. एक फोन कॉल कर दीजिए। सामने वाले को भी अगर आप बताएंगे ना कि how remarkable that person has been in your life, probably you will make that person also feel better. And क्या पता है, एक पुराना कॉर्ड, एक ब्यूटीफुल रिकनेक्शन हो जाए। You never know. अगर घर में कोई है तो उनके सामने बोलिए जाकर, that would be very nice. अगर कोई दूर है, अगर लिविंग है, तो just pick up your phone, make a random call to that person, say that I was thinking about you and I just thought that how beautiful you've made my life in this particular way. And you never know, एक कितना ब्यूटीफुल एक शुरुआत हो सकती है फिर से। कितनी बार होता है ना, कहीं हम लोग लाइफ में एक टाइम पे किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया हो, उसको भी शायद याद नहीं होगा, पर आपको वो आज भी अगर याद है, तो जब अगर आप उसको बताओगे तो इट कैन बी अ ब्यूटीफुल फीलिंग। सो यू कैन ट्राई इट आउट। और अगर नहीं करना हो तो जो अगर कोई भी ऐसे हैं जिनको आप फोन नहीं कर सकते हो या हुआ नो मोर, रिमेम्बर देम एंड डू इट। बट प्लीज डू दिस। Say thank you to every person who's made any difference in your life. It will really mean a lot to you, and it will also mean a lot to them. Maybe it will encourage them to, bring such goodness in many other people's lives also. है ना? तो ये भी हो सकता है कि आपका एक कॉल उनको इंस्पायर करे और लोगों को इंस्पायर करने के लिए। उन्हें शायद पता भी नहीं हो, कितनी बार हम लोग अनजाने में भी कर जाते हैं कुछ अच्छा वर्क, लेकिन जब कोई कहता है, then we feel even more motivated to carry forward that good work. So you can do that. Anyone would like to ask anything? Any sharings? Smita, yesterday you told me about the pain thing, ना, कि तुम अपने पेन को भी thank you, sorry बोलो, then ask for forgiveness. And yes, you did that. मैं बोलूंगी तो सबको लगेगा कि मैं हर टाइम मेरे पास ही कुछ ना कुछ रहता है बोलने के लिए, बट टुडे आई एम लाइक इन अ स्टेट। कल इतना हालत खराब था मेरा कि आई वाज लिटरली ऑन बेड एंड मैं अपने डॉटर को बोली थी, बेटा ये ला दे, बेटा वो कर दे, बेटा, मतलब लिटरली खाना भी बेड पे ही बैठ के मैंने खाया। एंड टुडे इट इज लाइक एकदम आराम से आई एम मूविंग अराउंड। एंड तो माय हस्बैंड वाज लाइक, एक दिन में बस नाटक चाहिए था क्या, रेस्ट का तुमको बोल देती थी और मैं ऐसे ही तुमको सर्विस दे देते थे। तो I don't know, it is all because of that magic thing which I am doing. बोले पता नहीं तुम क्या, मतलब he is not believing it कि ऐसे हो रहा है। तो मैंने उनको भी बोला कि आप करो, देखो मेरे साथ ये सब चीज हुआ है, I have shared my experience also. So he's like, तुम्हारा दिमाग में खाली वो बैठा हुआ है और कुछ नहीं है। So उनको थोड़ा टाइम लगेगा, I have to get him into it. But yeah, it is working. Like मेरा तो don't try to get him. Just be. You do whatever you are doing. I'm sharing my experiences with him, but he क्या है ना, कभी कभी इन लोग को बहुत
I will tell you one thing. When your life becomes magical ना, it's not necessary to tell people to do it. आप देखोगे जब आप में अपने अंदर चेंज आता है ना, आपके अराउंड जो सराउंडिंग्स होती है ना, वो धीरे धीरे अपने आप चेंज होती है। आपको और बोलने 2 की दिन से ना मालिश वालिश कर रही हूँ लेग में, और सब बाम मालिश मूव वूव सब लगा लिया, मालिश नथिंग। करो ना, उसको प्यार करो, टेल योर लेग, ओ माय यू बीन सच अ नहीं, वंडरफुल। कल कुछ भी नहीं किया, आई डिडंट इवन टच इट, ठीक है, कुछ भी नहीं, खाली जो तुमने बोला था बस आई डिड दैट ओनली, और बाय मॉर्निंग आई वाज फाइन। कल सुबह, आज सुबह तक एकदम फिट, मतलब ऐसे लगा सडनली से कहाँ वैनिश कहाँ हो जाता है। भाई मैंने जो स्प्रिंकलिंग का बताया था कि जो हमने मैजिक डस्ट का किया था, तो मेरे संग तो बहुत आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस एवरी डे, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है मतलब हम मेरे साथ। सो दिस इज लाइक यू विल नॉट नो, अभी तो सिर्फ 12 दिन हुए, आप 28 दिन पूरे होने दीजिए। You will see बहुत your... there's a lot of change, like lot of change. सडन से वो ग्रेटिट्यूड वाला फीलिंग आ गया कि हम लोग सबको, अभी जैसे बारिश आ रही थी तो आई अगेन मतलब बैठे बैठे मेरे को थैंकफुलनेस कभी जो किया ही नहीं कि अरे अच्छा हुआ, इतना अच्छा वेदर हो गया, आई एम थैंकफुल टू यू नो गॉड कि आपने रेन्स दिया। कभी हमने मतलब ऐसे बैठे बैठे कभी नहीं किया, हम बस नजारे का मजा ले लेते, चलो बारिश आ गया, अच्छा वेदर हो गया, बस ठीक है, बट कभी थैंकफुलनेस मुंह से हमारे निकला नहीं है ना कि अरे वाह देखो कितना अच्छा, द बर्ड्स आर सडनली यू नो दे आर चर्पिंग इन अ डिफरेंट वे। और लॉकडाउन होने से और भी अपने को सब चीज इतना अच्छा लग रहा है ना, तो सब चीज के लिए बहुत ज्यादा, मेरे में तो बहुत ज्यादा आई कैन सी द डिफरेंस अ लॉट इन एंड अराउंड मी। एंड जब बोलते भी, व्हेन आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस आल्सो, आई लिटरली गेट गूज बम्प्स, यू नो, कि अंदर अंदर कुछ चल रहा है, बोल रहे हैं तो अंदर अंदर लाइक यू नो इट हैज गॉट इनसाइड मी सो मच. This is going to be beautiful, a beautiful journey. It is really like I'm so happy I've joined this, and I'm पूरा religiously कितना मैं कर पा रही हूँ, I really don't know, because again वो घर का सबका अपना अपना टाइमिंग का सेटअप होता है, तो उस हिसाब से भाग दौड़ के to God and give the intention कि God do the best for me. I want to do this. Make me do it. But I'm seeing the best happening in and around me. Did I tell you about the 2 angels that we have? Did I share that story with you all? So it is said that when we are born, you know, every person who's born, God sends 2 angels with every human beings. वो हमारे ऐसे कंधे पे खड़े रहते हैं. All we have to do is to tell them what we want. हम लोग जानते ही नहीं है. And ये angels हमेशा रहते हैं, God के दूत हम लोगों के साथ. और मतलब I will tell you, I have shared this with few of my friends and they've told me, मतलब ऐसा होता है, लाइक सपोज आप कहीं जा रहे हो, आपको पार्किंग नहीं मिलती, यू टेल योर एंजल्स पहले से कि एंजल्स आई एम रीचिंग देयर, प्लीज मेक स्पेस फॉर माय पार्किंग, एंड यू विल गो एंड यू विल बी शॉक्ड कि आपको जाते ही वहां पे गाड़ी मिल जाती है. अगर आपकी कहीं कीज खो गई, आई तो टेल माय एंजल्स अ लॉट. और मान लीजिए कहीं होती है ना, कितनी बार अपनी आदत होती है कीज रख के भूल गए, तो लाइक माय मॉम शी यूज्ड टू से स्मिता कि कोई ज्वेलरी या कोई सामान खो जाए ना तो ढूंढो विनायक बोल के एक होता है, कोई टोटका है, आई डोंट नो, कि उनको बोलो ढूंढो विनायक कि हम आपके लिए इतना रुपया लगा देंगे, आप हमारे सामान हमको मिल जाए. आपको कुछ देने की भी दरकार नहीं, भगवान को हम लोग क्या दे सकते हैं, और भगवान के दूत को पैसे वो मिल भी जाता था ना, तो कुछ ना कुछ तो देयर सम लॉजिक, लोगों की आज्ञा का पालन करने के लिए से अपने बोलते ना भगवान को प्रसाद लगाओ, ये तो हो गया कि लेन देन का अपने लोगों ने शुरू किया है, पर भगवान को नहीं चाहिए वो भी. अगर आप भगवान, बस ये रूल बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, वो तो हम लोग ने. भगवान तो अपने भक्तों के लिए खड़े हैं. अगर आप हक से उनको बोलोगे ना कि आपको तो ये करना ही है मेरे लिए, वो भागे भागे करेंगे. बस हमें उतने विश्वास से उनको बोलना होगा. हमारे जिसको भी आप जानते हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे कृष्णा जी हो, चाहे शिव जी हो, जो भी हैं, एक पांव पे खड़े होके करेंगे अगर उनके भक्त सच्चे मन से उनको बोलेंगे. And you just try this, मतलब they will do whatever you say. हम लोगों को बोलने में, हम लोग बोलने से डरते हैं, ये तो थोड़ी ना होएगा. वो कन्विक्शन होना चाहिए. अगर आप ये सोच के बोलोगे अरे मेरे ठाकुर जी क्यों नहीं करेंगे, मेरे लिए वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वो तो करेंगे ही मेरे लिए. अगर ये भावना से आप जो भी बोलोगे, जो भी मांगोगे, वो होएगा. It's so magical. We actually don't realize कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये तो मैजिक की एक भ्रम ही तो है, माया नगरी है. What do we call this? Earth is a माया नगरी. माया is magic, nothing else. तो हम लोग तो माया नगरी में ही रह रहे हैं. तो ये तो पूरा मैजिक ही है हमारे अराउंड.
हम लोग बस ये चीज रियलाइज नहीं करते। अगर ये हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Yeah, I was very happy to see Navya Siksaria. Navya, are you still there? और कि आप चले गए हो? Wow, I was very happy to see you, beta. So, are you following all the exercises? Yes, auntie. Are you writing all your? I could see you've written it for 8 days. So now you have to make sure that you, Yashi, Navya, Kashvi, there's one more girl, Debushmita. These are the 5 youngest amongst our group, and I'm so happy कि ये सारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी सारी exercises every day कर रहे हैं. And it makes me really feel so nice, I can't tell you. Thank you all of you for doing it so beautifully. And now all of you have to make sure that you call up your each other and उन लोग को याद दिलाओ अगर किसी दिन कोई भूल जाए तो. Navya Saksaria, I'm telling this to remind Navya Malika. Yashaswini does her work very nicely. Remind Kashvi if she forgets. Remind your friends and make sure कि आप अपना work भी put in करें and tell your friends if they've not sent in today. Give them a call कि आप भी अपना डालो, आप भी अपना क्या आपने आज अपने क्या हैप्पी मोमेंट किया, शेयर इट विद अस. तो आपका जो छोटा छोटा हम लोगों ने ग्रुप्स बनाया है वो इसीलिए बनाया है ताकि अपने ग्रुप्स में आप लोग वो शेयरिंग्स कर सको. And make sure that every person in your group is doing all the activities every day. Okay. Do you all want to see magic? तुम लोग मैजिक शो देखते हो ना? किसको मैजिक शो पसंद है? नव्या को नहीं पसंद है. हाँ नव्या, तुमको मैजिक पसंद है? नव्या सिक्सारिया? आंटी हाँ. और नव्या मल्लिका को मैजिक नहीं पसंद है. आंटी बट मैजिक रियल नहीं होता, मतलब जो मैजिक ट्रिक दिखाते हैं. मैजिक ट्रिक्स रियल नहीं होते पर रियल वर्ल्ड में रियल मैजिक होता है. और अगर आप लोग ये बुक को सीरियसली फॉलो करोगे ना, जैसे भी आंटी ने बताया ना, सच में रियल मैजिक होता है. तो आप लोग देखोगे कि आप लोग की लाइफ मैजिकल हो जाएगी. फिर आप लोग को ट्रिक्स सीखने की दरकार नहीं पड़ेगी. आप लोग देखोगे कि आप लोग की लाइफ अपने आप ऑटोमेटिकली मैजिकल हो जाएगी. Do you want to make your life magical? Yes. Yes? Yashaswini, do you want to make your life magical? Navya Mallika? Yes. So you all will do all the exercises every day. Shivangi, please make Dipanshi. And what is the name of your son? Tanmay. Tanmay. Actually, he was sitting for quite some time, but उसका फिर dance class था तो he moved on. कोई बात नहीं, but please ask them. I'm adding Tanmay to a group जिसमें 4-5 उसकी एज के बच्चे हैं. So ask him to put his work every day. Okay, fine. I have put people in groups according to their ages and people whom they know. तो उससे क्या होगा कि सबको वो एक्टिविटीज करने में बड़ा मजा आएगा. So please get friendly to the people in your group and make sure that you do your activity and inspire others on your group also to do the activities. क्या होता है जब हम लोग मिलके कोई काम करते हैं ना तो उसको करने में और मजा आता है और वो और जल्दी मैजिकल हो जाता है. Okay? So does anyone have to ask anything to Ashvika? No? Good. See, Ashvika explains everything so beautifully. No one has any questions. Thank you, Ashvika, for doing it so nicely. Thank you, everyone. So, Ashvika, do we have a closing song also? Or shall we close the session now? I think we should close because I have another Zoom meeting right now going on. Okay. So let us wrap up today and look and believe in magic and real magic will happen. देखिए, भगवान भी सिर्फ विश्वास पर हैं. अगर आप मानोगे ईश्वर है तो ईश्वर है. वैसे ही अगर आप मानोगे आपकी लाइफ में मैजिक होएगा तो मैजिक होएगा. ये आपको, अगर आपको अपनी लाइफ मैजिकल बनानी है तो आपको सोचना होगा, क्योंकि जो हम लोग सोचते हैं हम लोग की लाइफ में वही होता है. एंड एक चीज सच में याद रखिए कि ये दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिक. द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू रेज आवर वाइब्रेशंस टू सी दैट मैजिक हैपनिंग. हम लोग अगर अपने आप को, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करेंगे ना, एंड दिस थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, it elevates our consciousness, our vibrations. It makes us a higher being. तब हम लोग की लाइफ में मैजिक होने लगे. Okay? So love you all.
Stay blessed and be magical.